as sir has pointed out, or make it a happening class, isn't it? ये कोई एक routine सा class नहीं होना चाहिए. The more you interact, the more we will learn from you. And if you want to add something of value, you are most welcome. आपके पास शायद कोई information हो जो आप add करना चाहते हैं, which are relevant, you can add, because ये subject matter ऐसा है जहाँ की you can very well add number of information from your part, because we Indians have observed the society from very close quarters, because we are a part of it, obviously. So let us start the discussion. And obviously the पहला topic है, that is about stratification. Stratification, this is the first topic that is to be discussed. So I hope you are getting the slide. Social stratification, that is the first one. Any idea what is this stratification? Stratification का मतलब क्या है? क्यों हम लोग बोलते हैं society जो है stratified है? Before we come to the definition part or elaboration of this word, yes, anybody wanted to speak? So division of society. Division of society, well said, perfectly said. Anything else? Division of society. Sir, वही की society divided in different parts में. Very good, very good. So society divided into different parts. So this word divided is very common. You see, can you think of a society in which everybody is at the same level, which is called egalitarian society? In egalitarian, mind the words, ये note down कर दिए, कहीं पे note कर लीजिएगा. Egalitarian का मतलब है जहाँ society के सभी member एक level पे होंगे. Can you think of the society which is egalitarian, where every member of the society is at the same level? No, sir. No, sir. It is not possible, not possible. In fact, ये कहा गया है ना कि God created them all to be the one, but we have differentiated. We have created the divisions. You cannot have a society which is level-less. All cannot be on the same platform. So what essentially is stratification? Strategy word है ना, ये आया है geography से, जहाँ levels की बात होती है. जैसे rock का अलग-अलग level होता है. Getting it? Impervious rock और क्या whatever. वहीं से ये concept आया है stratification का. And a society is conceptualized to comprise of different levels. और यहाँ भी जो बात है वो है society के levels की. ठीक है, डिफाइन कर लें इसमें. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब सोसाइटी को हम लोगों ने डिवाइड करना है डिफरेंट क्राइटेरिया पर. इट इज अ कैटेगराइजेशन ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. सोसाइटी, एज यू सेड, इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन सर्टेन बेसिस. किसी न किसी बेसिस पर आप सोसाइटी को डिवाइड करने वाले हैं, राइट? और ये क्या बेसिस होता है, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द सोसाइटी ओनली. Society will be deciding the basis for the division. लेकिन एक बात तो जाहिर है कि society will be a divided lot. Society will be fragmented. It will not be a homogeneous society. कोई भी society हो, कितना भी simple या complex क्यों नहीं हो, we will come to that. So before we proceed any further, write down this. Social stratification attempts to categorize group of people into a hierarchy. Grouping होगा, hierarchy मतलब levels. Grouping of people into a hierarchy. याद रखिए, देखो कितना levels है, 1 2 3 4 5. तो भी there will be different levels of people. और ये जो group बनेगा, we will be according different importance to the group. क्या मतलब? That understand is very clear. यहाँ ऐसा नहीं केवल money will be the deciding force. कुछ भी मतलब the society will be divided on certain basis.
which is to be decided by the society only. It could be wealth, it could be status, it could be power, it could be anything that you could think of. जैसे there was a study that was conducted, और उस स्टडी का पर्पस ये था जानना कि क्या सोसाइटी में डिवीजन क्या इंडिस्पेंसिबल है, क्या होगा ही. Let us study a very simple society जहाँ की hunting was the means of subsistence. लोग जीते थे hunting करके. They used to gather food from jungles. और वही एक बहुत छोटा सा ट्राइबल सोसाइटी था. एंथ्रोपोलॉजी में इसकी स्टडी हुई थी, और वहाँ पर उन्होंने पाया कि एक ऐसा सोसाइटी जहाँ ओनरशिप कुछ है ही नहीं, क्योंकि देखिएगा मार्क्स आगे पढ़िएगा तो वहाँ ओनरशिप बिकम्स द क्राइटेरिया फॉर द डिवीजन. सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू हैव एंड हैव नॉट्स. आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको. लेकिन यहाँ पर ओनरशिप तो कुछ है ही नहीं. हंट करना है, फूड गैदर करना है और जिंदा रहना है, दैट्स इट. लेकिन आप देखिएगा वैसे भी सोसाइटी में डिवीजन था. दैट वाज वेरी अमेजिंग. जहाँ कुछ जमा करने का था नहीं, नो बैंक बैलेंस, नथिंग, ना कोई वेल्थ या कोई नॉलेज या कोई भी दूसरा क्राइटेरिया, वहाँ उन लोगों ने भी अपना एक क्लास बना लिया था. कैसे? They used to collect sea shells. Sea shells होता है ना समुद्र किनारे में जो शेल्स मिलेगा. Yes, जिनके पास ज्यादा, हाँ, तो जिनके पास ज्यादा होता था ना sea shell, उनको ज्यादा लोग इज्जत देते थे. And they used to collect the sea shells, and that used to be the source of their status. यानी किसी न किसी बहाने से आप सोसाइटी को डिवाइड कर ही लेंगे. अगर अब वो क्या होगा क्राइटेरिया, सोसाइटी विल अटैच इंपॉर्टेंस टू, ये मनी होगा या नॉलेज होगा या डोमिनेंस होगा या नंबर होगा व्हाट, या जेंडर होगा व्हाट. सोसाइटी तो डिवाइड होने वाला है. जहाँ कुछ कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां भी उन्होंने डिसाइड कर लिया, सी सेल्स के बेसिस पर सोसाइटी को डिवाइड कर लिया. फिर हो गया कैटल्स, जिनके पास ज्यादा था वो ज्यादा डोमिनेंट ग्रुप हो गया. कुछ ना कुछ ओनरशिप, चाहे आप नॉलेज के ओनर हैं, वेल्थ के हैं, या कोई भी पावर के ओनर है, अगर आपका पास ज्यादा पावर है. सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप यू डिवाइड द सोसाइटी. दिस इज वेरी टिपिकल. और सोसाइटी का मतलब ये नहीं केवल इकोनॉमिक बेस होता है डिवीजन का. डिवीजन का कुछ भी बेस हो सकता है. मे बी इंफॉर्मेशन, अर्लियर यूज्ड टू बी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, मे बी पावर, डोमिनेंट क्लास होता है. पैसा किसी के पास होगा लेकिन डोमिनेंस किसी और का होगा. इंडियन सोसाइटी में भी ऐसा बहुत कुछ एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, वो आपको डिस्कस करेंगे. लेकिन ऑब्वियसली कैटेगराइजेशन, सोसाइटी विल बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स, याद रखिएगा. नाउ मूविंग ऑन, एज वी डिस्कस्ड, ये डिवीजन हो सकता है किसी बेसिस पर, मे बी सोशल क्लास. हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास एंड कास्ट एज पर द सिलेबस. एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का. सोशल क्लास, जेंडर, एथनिसिटी, एज, ये तो बहुत छोटा हो गया ना. यू कैन ऐड मेनी मोर टू द लिस्ट, because social stratification is the idea that people are divided into different hierarchies, division. So there cannot be a homogeneity. सब लोग एक जैसे नहीं हैं, और इसलिए सोसाइटी का भी डिवीजन बिल्कुल तय है, वो होगा ही होगा. And some will be given more importance as compared to the others. अब ये जो डिवीजन बनता है वो कैसे बोलते हैं, सोसाइटी, क्लास या कास्ट और व्हाटएवर. हायर लेवल पे जो लोग होंगे, they will be given more importance, more status, more ability to influence others. उनके जो नीचे लोग होंगे उनको वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, माइंडेड. सो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस लेवल पे हैं, आपका लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस उतना ही होगा. जैसे जो लोग टॉप लेवल पे हैं, दे कैन इन्फ्लुएंस ऑल द डिफरेंट लेवल्स बिलो देम. ये जो आप पिरामिड सामने देख रहे हैं, जो कि ट्रायंगल की तरह दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो सबसे जो ऊपर क्लास है, दे हैव द कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द रेस्ट ऑफ द अदर्स. लेकिन ये जो क्लास है जो पिंक में आपको दिख रहा है यहाँ पे,
सेकंड लेवल, वो केवल नीचे वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे पता होगा मैनेजमेंट में अपने लाइन अथॉरिटी जो सुपीरियर है वो केवल अपने सबऑर्डिनेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो अपने हायर लेवल को ऑर्डर नहीं दे सकता। इट इज जस्ट लाइक दैट, दे कुड डिक्टेट द टर्म्स, दे कुड एक्सर्ट एन इन्फ्लुएंस मोर टू द लोअर लेवल, इट परकोलेट्स डाउन। इसका फ्लो जो है ना इन्फ्लुएंस का, वो नीचे जाता है, जस्ट पानी की तरह, वो पानी नीचे बहता है वहाँ, उसी तरह से यहाँ पे इन्फ्लुएंस नीचे की ओर बहने वाला है। और ऑब्वियसली जो हाईएस्ट लेवल पे हैं दे हैव गॉट द मोस्ट ऑफ पावर, और जो लोएस्ट लेवल पे हैं दे हैव गॉट द लीस्ट ऑफ पावर। सो वन थिंग इज फॉर श्योर, society is divided, society is divided, there cannot be any difference of opinion। अब ये डिवीजन कितना स्टार्क है, कितना ब्लेटेंट है, कितना एकदम क्लियर कट है, उस पर डिस्कशन हो सकता है। some societies are not as literally divided as compared to other, लेकिन वहाँ डिवीजन वहाँ भी है। you cannot have a society without divisions, that is for sure। अब कितना लेवल्स है that may differ। जैसे मार्क्स के हिसाब से, कार्ल मार्क्स नाम सुना है? There was an important economist, Karl Marx, जिसका सोशियोलॉजी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है। This person is one of the revolutionary। He said that society is intrinsically exploitative, exploiting करता है society, क्योंकि society में हम लोग इसको आगे elaborate करेंगे। डिवीजन होता है सोसाइटी में, जो स्टार्टअप बनेगा वो बनेगा कुछ लोग who will own the forces of production, जो प्रोडक्शन के फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के मालिक होंगे, और ये बहुत कम लोग होंगे। माइनॉरिटी, very few people who will be owning the forces of production, they will exploit the majority who will not be owning the forces of production, and therefore they are destined to work for them in order to win the bread, in order to live, in order to survive। उनको सर्व करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको जिंदा रहने के लिए वो जिनके पास फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको अपना लेबर ऑफर करना पड़ेगा। इस पर हम डिस्कशन करेंगे, आगे डिटेलिंग करेंगे। तो वहां भी सोसाइटी दो पार्ट में बट गया, हैव एंड हैव नॉट्स। हैव के पास फोर्स ऑफ प्रोडक्शन थे और ये बहुत कम लोग थे, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, एंड हैव नॉट्स दे वर द मेजॉरिटी एंड दे डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ऑफर एक्सेप्ट लेबर। ये केवल लेबर ही ऑफर कर सकते थे और कुछ नहीं। तो सोसाइटी वाज डिवाइडेड, तो डिवीजन तो होगा। अब ये दो ही में हो गया, और ऐसे देखिएगा तो बहुत सारे लेवल्स आपको मिलेंगे बहुत सारे अलग अलग सोसाइटी में। जैसे अभी हम लोग आएंगे कास्ट एंड कास्ट सिस्टम पे, तो अब देखिए कितना डिवीजन होने वाला है। लेकिन डिवीजन इज समथिंग दैट इज एविडेंट, डिवीजन तो होगा ही, यू कैन नॉट एस्केप। यू कैन नॉट थिंक ऑफ अ सोसाइटी where everybody is on the same level। सभी लोगों को हम लोग एक लेवल पे ला दें, नहीं हो सकता है। It is not possible simply। It is utopian concept। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। We love to have such society, हमें चाहिए वैसा सोसाइटी, लेकिन it is impossible। It is not practical। It is not possible in the first place। ठीक है? So write a few lines, पॉइंट को जॉट डाउन कर लें या समझ लें, कीवर्ड्स आपके दिमाग में रहने चाहिए, मटेरियल आपके पास होगा। ये कंसेप्ट हमेशा आपके दिमाग में ऐसे छप जाने चाहिए ना कि whenever you are there you can express your point of view। तो ये पॉइंट सारे जो हैं वो आपके दिमाग में आप इनको फिक्स कर लें। क्लासिफिकेशन लिखिए से आप समझ लें। हायरार्किकल डिविजन्स, हायरार्की मतलब लेवल्स, हायरार्किकल divisions of society, hierarchical divisions of society into rankings, hierarchical divisions of society into rankings that are accorded differential status। याद रहे, इसको हम लोग थोड़ा इलैबोरेट करेंगे। Let us understand what that does mean। इसका मतलब है क्या? मतलब ये एक सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ग्रुपिंग्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स होगा सोसाइटी में,
and each of the group will be having a different status. मतलब status के terms में हम लोग group has got the most of status that will come at the highest level, right? तो हम लोगों ने status के basis पर जो status का basis क्या हो सकता है? Maybe wealth, maybe your knowledge, maybe ownership, कितना जमीन आपके पास है, getting it? कुछ भी, कितना influence आपके पास है. आपके पास तो फुटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन you could exercise influence over large group of people. So what places you on the position by the dint of which you can influence others, that is going to give you the power. And power से आपको मिलेगा status. ठीक है? तो society will decide कि ये arrangement किस basis पर होगा. So hierarchical divisions of society into rankings that are accorded differential status. ये सारा क्या status का है? जो lowest, सबसे जो lowest rung पे है, सबसे जो lowest level पे है, उसको status सबसे कम है उसका. Getting it? तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे the degree of status that they will enjoy will simply go. उन्होंने society को वैसे arrange कर लिया है, and this is bound to happen, irrespective of the fact कि society simple हो या complex हो, there cannot be homogeneity. अच्छा, marketing, you are people of marketing पढ़ा ही होगा. Consumer behavior पढ़ा है ना? बिल्कुल पढ़ा होगा. We all are consumers. Yes, sir. याद है हम लोगों ने एक पता नहीं आपने पढ़ा होगा एक concept market segmentation. पढ़ा है कभी? Yes, sir. नहीं पढ़ा? Yes, sir. पढ़े. Market segmentation. Don't you think कि वहाँ भी यही हो रहा है? Market segmentation में भी आप यही कर रहे हैं. Customer के group को आप अलग-अलग divisions में बांट रहे हैं. नहीं. Yes, sir. जब आप segment की बात करते हैं तो क्या करते हैं? You are dividing the homogeneous market into heterogeneous market into homogeneous groups. नहीं, आप decide कर लो क्या base चुना है आपको. Geographic, demographic, psychographic, behavioral, जो भी आपको चुनना आप चुनना. And then you divide the market. क्योंकि as a marketer you cannot serve one and all. आप सभी को equally good नहीं हो सकते हैं serve करने के respect में. Can you offer the same product and satisfy everybody? No, sir. No, sir. It is not possible. एक ही product सबको कैसे? क्योंकि people are divided. Their expectations are different. If somebody could pay more, why they will end up making a compromise with your inferior products? Getting it? अब कुछ को नहीं, कुछ किसी के पास purchasing power ही नहीं है. They cannot spend more, so they could look out for the least price product. तो कितना variation है consumers में? So how can you treat them alike? आप सबको एक जैसे कैसे सोच सकते हैं? वहाँ भी एक concept है undifferentiated marketing का, जहाँ mass marketing होता है. वो कब होता है? We will discuss that. लेकिन don't you think the marketer does the same? वो भी customer के base को divide कर रहा है. और divide क्यों कर रहा है? तब वो उनको बेहतर focus कर पाएगा, उनको बेहतर serve कर पाएगा. Because you cannot satisfy everybody in equal degree. कुछ ज़्यादा satisfy होंगे, कुछ सब satisfied होंगे. और आज के डेट में with the growth of competition, आपको आपके जो भी target customers हैं, उन्हें आपको superior value offer देकर most satisfied करना होगा. क्योंकि आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज का डेट में क्या है? You stand a chance of losing your customers. कस्टमर बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना आसान है कस्टमर खो देना. Getting it? Yes. नहीं, आपको लगता है कि कस्टमर खोना is very easy today? आपने कस्टमर बना तो लिया, बहुत जो भी मेहनत किया आपके साथ जुड़ तो गए, लेकिन कब आपका दामन छोड़ देने वाले हैं आपका एहसास भी नहीं चलेगा. They will not even let you know. They, or as far as the moment they will decide to make an exit from your camp, वो आपके कैंप से निकल जाएंगे. तो रिटेन करना बहुत मुश्किल है. और जब तक अच्छा कोई आपके साथ कब तक जुड़ा रहेगा? जब तक उसे लगेगा कि you continue to offer a superior value to them as compared to others. इसीलिए मार्केट को भी सेगमेंट करते हैं.
लाइकवाइज सोसाइटी का भी सेगमेंटेशन हो गया है। तो सोसाइटी का सेगमेंट यहाँ जो बोल रहे हैं उसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। It is simply the division of society into different groups which are accorded different status. Now, ये criteria क्या हो सकता है? On what basis can you divide the society? Whatever. यहाँ कोई preconceived notion नहीं है, बस इसी criteria पर. It could be anything that comes to your mind and anything that the society attaches importance to. Try to understand this. ये society का division कैसे होने वाला है? Society will attach importance to certain aspects of social life, जैसे worth, income, maybe race, maybe knowledge, or whatever. जैसे मान लो एक आदमी कुछ नहीं कमाता है, इनकम जीरो, लेकिन फिर भी उससे बहुत उसका स्टेटस बहुत ज्यादा है। क्यों? अगर और डिवीजन का जो क्राइटेरिया है दैट इज इकोनॉमिक बेसिस पर हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। Although the person does not own anything, still the person may be having a greater status in terms of the stratification part, because that person might have ancestral property, that person might have inherited a fortune, the person himself might not be doing anything, still he is able to afford to lead a lavish life. अब उस डोंट यू थिंक वैसे कस्टमर के पास सभी मार्केटर पहुंचने की कोशिश करेंगे विद मोस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट्स व्हाटएवर। तो सोसाइटी को हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिफरेंट लेवल्स। अच्छा, तो दो चीजें अभी सामने आई हैं, सोसाइटी इज डिवाइडेड और डिवीजन का कोई क्राइटेरिया होगा, और ये जो अलग अलग डिविजन्स होंगे उसको अलग अलग स्टेटस होगा। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है जिसमें आप लेवल की बात कर रहे हैं, इसमें दो कंसेप्ट आता है। ये स्ट्रैटिफिकेशन हो सकता है जो सोशल सिस्टम है, सोशल सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट स्ट्रेटा। इट कुड बी अ क्लोज सिस्टम और इट कुड बी एन ओपन सिस्टम। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। क्लोज सिस्टम का क्या मतलब? जहां की आप अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। Even if you make an effort, you cannot change your position. That is inherent. वो उसी के साथ वो आपके भाग्य, your fate. मतलब क्या हुआ? लिखना है इसको। क्लोज सिस्टम का क्या मतलब है? A little change in the social position. little मतलब no change. You cannot change your social position even if you like to, even if you make an effort. You cannot change your social position for sure. So no change in social position, no shift in levels. You cannot raise your levels. आप एक लेवल से ऊपर उठ के दूसरे लेवल में नहीं जा सकते हैं। There is a barrier. You cannot cross that barrier. Or even the interaction between the levels, no interaction. वो अपना अपना ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। No social mobility. आप एक ग्रुप से मूव नहीं कर सकते हैं दूसरे ग्रुप में। मतलब क्या? The status is ascribed. Ascribed मतलब क्या होता है? जो कि आपको हाँ राइट वो आपको मिला हुआ है। You simply get it. जैसे कास्ट सिस्टम इन इंडिया टुडे स्टिल, बताइए, हम लोग जाएंगे, we will trace back the history of caste system. मनुस्मृति में सबसे पहला इसका जिक्र हुआ, and you might be surprised, 3000 years BC, before Christ, 3000 पहले का डेवलपमेंट है। माय गॉड, और अभी तक हम लोग हो रहे हैं। गेटिंग इट? अब तो इसके बेसिस पर लोग पॉलिटिक्स करने लगे। हमें सोसाइटी चाहिए था क्लासलेस, कास्टलेस सोसाइटी, और रिजिड होता जा रहा है। हालांकि एजुकेशन सिस्टम से डिफरेंस आया है, लोगों के एक साथ रहने से डिफरेंस आया है, बहुत डिफरेंसेस आए हैं। वी आर, लेकिन बहुत जो रेट ऑफ चेंज है ना, दैट इज वेरी स्लो है। वी विल डिस्कस दैट। तो कास्ट सिस्टम इन इंडिया, जो कास्ट सिस्टम है ना, दैट इज अ टिपिकल केस ऑफ क्लोज सिस्टम। यहाँ स्ट्रैटिफिकेशन है, एक क्लोज सिस्टम है। स्ट्रैटिफिकेशन in Indian context is a closed system because there is a concept of caste which you derive out of your birth,
वो बर्थ से डिसाइड हो जाएगा, वो चेंज नहीं होने वाला है. We will have a detailed discussion on caste system and class system in due course, because आपके सिलेबस में अच्छा खासा उस पर फोकस दिया हुआ है. एंड सेकेंड इज ओपन सिस्टम, जहाँ के आप चेंज कर सकते हैं अपने आपका जो रैंकिंग है सोशल स्ट्रेटा में, आप उसको चेंज कर सकते हैं. वो आप ऊपर जा सकते हैं या नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है. इट इज शेयरली बेस्ड ऑन अचीवमेंट. इफ यू मेक एन एफर्ट यू अचीव, एंड it will allow the movement. You can change your social position because you have achieved something, or you fail to achieve, you will also go down. यहाँ mobility दोनों डायरेक्शन में हो सकती है. You can move up or you can move down. लेकिन कास्ट सिस्टम में क्या है, जिस क्लास में जन्म हुआ है, जिस कास्ट में, उसी कास्ट में आपका डेथ भी होने वाला है. You cannot change your caste even if you achieve whatever. Getting it? That is a rigid system. Typical one. So ये typical Indian phenomena है. This is typical an Indian phenomena which you won't find in many of the countries. So class status, class में जो है ना, status is something that you achieve by the dint of your capability, effort, and there is an ample scope for movement. You can move from one class to another depending upon your effort. और अगर नहीं एफर्ट लगाइएगा तो अपना क्लास आप लूज भी करने वाले हैं. यू मे आल्सो स्लाइड डाउन. वी विल डिस्कस दैट. नाउ मूविंग ऑन, लेट अस डिस्कस दिस कास्ट सिस्टम. टुडे वी डिस्कस द कास्ट सिस्टम, और फिर हम लोग एज अ टाइम नेक्स्ट क्लास में शायद हम लोग क्लास पढ़ाएंगे. आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कास्ट. वेरी टिपिकल एग्जांपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग वन. कास्ट, obviously it is a closed system and it is out and out closed. हालांकि देखिएगा in ancient ages में by the, अच्छा वहां पर है ना prohibition है, मतलब जो मैरिज होगा एक ही कास्ट में होने वाला है. आज के डेट में ना you have intercaste marriages, जिसके कारण ये कास्ट लाइन ब्लड होने लगा है. पहले भी था अनुलोम एंड प्रतिलोम विवाह. अच्छा, कोई सोशियोलॉजी पढ़ा है इसमें, इस ग्रुप में? एनीबॉडी स्टडीड सोशियोलॉजी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम? कभी किसी का पेपर रहा है सोशियोलॉजी? नो सर. नो, डोंट वरी, क्योंकि इसका जो टिपिकल आपको मिलेगा ना डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन, वो सोशियोलॉजी में मिलेगा कि कैसे कास्ट सिस्टम ओरिजिनेट हुआ एंड व्हाट डेवलपमेंट शेप द कास्ट सिस्टम इन इंडिया टुडे, और कैसे वो चेंज हो रहा है, कैसे परमिसिव. देखिए लेकिन बहुत डुअलिटी है. देखते हैं कास्ट के नाम पर लोग वोट डालते हैं. Yes. पॉलिटिशियंस Yes, sir. एक्सप्लॉइट यू. Yes, sir. पॉलिटिशियंस आपको एक्सप्लॉइट करते हैं कास्ट के नाम पे. इन ब्लॉक वोटिंग होता है, वो हमारे कास्ट के हैं, तो कास्ट से हम लोग कनेक्टेड भी हैं और कास्ट से हटना भी चाहते हैं. लेकिन कितना है, हम लोग यही सोचते हैं कि क्लास पे होना चाहिए. नो, कास्ट क्या है, ये रिलेटिव है, ये कंसेप्ट ही खत्म होना चाहिए. वी ऑल आर वन. इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए. लेकिन पॉलिटिक्स प्लेज अ रोल और दैट हैज डिवाइडेड अस. तो खैर, इट्स अ क्लोज सिस्टम. ऑब्वियसली यू कैन नॉट चेंज योर कास्ट. इसका मतलब है यू आर बोर्न इनटू अ सोशल स्टैंडिंग एंड यू स्टे देयर. ये अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको कहीं नोट कर लीजिए. एन इंडिविजुअल is born into, mind the word born, an individual is born into a social standing, मतलब जो भी social status. सर 1 मिनट से भी कम बचा हुआ है, क्लास एंड हो जाएगा. क्या होगा? तो क्लास एंड हो जाएगा, 1 मिनट से कम बचा हुआ है. हाँ, तो इसके बाद हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे ना.